are doing exercises of chapter number 10. So today we will do short answer type questions. So let's start. What is barometer used for? This answer is in page number 56. This is the page number 56 and this is topmost line. Barometer is used to measure the pressure of the air. Next question. Write the two factors affecting air pressure. This answer is also in page number 56. So you will write down the heading factors affecting air pressure and then you have to start from here. The main factors affecting the air pressure are as follows. First, height from the sea level. Second, temperature. Then the atmospheric pressure is the highest at the sea level. As we move higher from the sea level, the density of air reduces so that it becomes lighter and the atmospheric pressure is reduced. That is why oxygen is required at great heights on the mountains. Now, second, temperature. So you have to start second factor, temperature. With the rise in temperature, air extends, becomes lighter and rises up. The weight of air is reduced due to this. As against this, with the fall in temperature, air becomes heavy and therefore the atmospheric pressure rises. Besides this, the rotation of the earth and evaporation also affect the air pressure. यहाँ तक तो आपको वहां से लेकर ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर और फिर द मेन फैक्टर्स से लेकर ये यहाँ तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 58. सो स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे परमानेंट विंड. द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लोज नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर is called the permanent wind. परमानेंट विंड के आपको टाइप्स भी लिखना है. सो ट्रेड विंड. ट्रेड विंड के लिए आप लिखेंगे these winds blow over both the hemisphere in a particular direction throughout the year. Then westerlies के बारे में आप लिखेंगे. westerlies winds जो लिखेंगे यहां से लिखेंगे these winds blow throughout the year towards the poles from the subtropical high pressure belt. And then polar winds के बारे में आप लिखेंगे तो polar winds में लिखेंगे these winds blow in both the hemisphere from high pressure polar belts to low pressure subpolar belts. ये आपको आंसर में लिखना है. 3 टाइप की परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज विंड एंड पोलर विंड्स और उनके विषय में थोड़ा थोड़ा. Now, what do you mean by monsoon winds? This answer is also in page number 58. इस आंसर को आपको यहां से लिखना है द विंड्स से लेकर के. पेज नंबर 58 में लास्ट पैराग्राफ है सीजनल विंड्स. उसके नीचे से द विंड्स विच ब्लो इज डेफिनेट पीरियड से लेकर के ये पूरा आपको लिखना है विंड डायरेक्शंस थ्रू द ईयर यहां तक. And now next question. What is Farrell's law? This answer is in page number 57. Here is the Farrell's law given. ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 57 में पिक्चर्स के नीचे दिया है Farrell's law. A scientist named Farrell proved that due to the Earth's rotations, wind and oceanic currents turn towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. Now next question. Long answer type questions. What are winds? Differentiate between air and wind. So this answer is in page number 56 and 55. सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट आर विंड्स. तो ये विंड्स की डेफिनेशन पहले लिखेंगे. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड. यहां तक
द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर along the surface of the earth is called wind. फिर उसी में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन एयर एंड विंड, तो ये आंसर पेज नंबर 55 में है. ये यू कैन सी एयर सराउंड्स द अर्थ, विंड इज द नेचुरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. यहां से लेकर के पूरा एग्जाम्पल ऑफ विंड यहां तक. और जब आप बैरोमीटर का आंसर लिखेंगे तो ये बैरोमीटर की आपको पिक भी बना करके उसमें लगाना है. आप छोटी भी लगा सकते हैं या बड़ी भी लगा सकते हैं, पर आंसर के साथ ये पिक जरूर लगाएंगे. ऐसा हर आंसर में करना है, जहां पिक्चर आप बना सकते हैं वहां करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर प्रेशर. ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स. सो दिस आंसर इज पेज नंबर 55 एंड 56. सो यू कैन सी हियर मीनिंग ऑफ एयर प्रेशर, ये डालेंगे. फिर यहां से लिखेंगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यहां से लेकर के मेजर्ड इज मिलीबार यहां तक. फिर उसकी पिक्चर दी हुई है ये एयर प्रेशर बेल्ट. तो आपको ये हाई पोलर हाई प्रेशर, तो एयर प्रेशर बेल्ट का लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है, वो ये है एयर प्रेशर बेल्ट फिगर नंबर 21. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एयर प्रेशर बेल्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यही डायग्राम इसमें पूछा गया है, यही डायग्राम इसमें पूछा गया है. तो आप चाहें तो इसमें सेकंड में ना बना करके उसे थर्ड में बना सकते हैं और एयर प्रेशर बेल्ट को डिस्क्राइब भी, क्योंकि इसी में करना है, तो आप उसको सेकंड में ना बना के थर्ड में बनाएं. और आंसर जो है एयर प्रेशर बेल्ट का ये यहां से लेकर के आपको पूरा ये फोर्थ टॉपिक सब टॉपिक जो है फोर्थ सेंटेंस जो है सदर्न हेमिस्फीयर यहां तक के आपको लिखना होगा एयर प्रेशर बेल्ट. ये एयर प्रेशर बेल्ट यहां से लेकर पूरा और यहां नीचे तक पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 85 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are cyclones and anticyclones? Explain with illustration. So this answer is in page number 60. यहाँ आपको आंसर दिए हुए हैं साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोन्स और पिक्चर भी दी हुई है, आपको पूरा लिखना है साइक्लोन्स एंटीसाइक्लोन्स और पिक्चर बनाएंगे. सबसे उसके पहले ये एक लाइन बस लिखना है जस्ट एज अ वर्ल्ड इज क्रिएटेड इन फ्लोइंग वाटर इन द सेम मैनर सर्कुलर मोशन क्रिएटेड इन एयर इज नोन एज साइक्लोन. यहां तक ये पहले उसके बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज साइक्लोन, देन साइक्लोन की ये फर्स्ट और फिर उसकी पिक्चर, फिर एंटी साइक्लोन, फिर उसकी पिक्चर. इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सो दिस आंसर इज इन पेज नंबर 59. दिस इज द पेज नंबर 59 सी ब्रीज. तो आप देख रहे हैं सी ब्रीज को ये पूरा आपको लिखना होगा सी ब्रीज विच आर कूल तक. और ये सी ब्रीज कूल तक लिखने के बाद आपको पिक्चर भी बनानी होगी फिगर नंबर 25 आंसर में ही. इसी तरह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी लिखना है तो लैंड ब्रीज लिखेंगे और फिर उसकी पिक्चर भी आपको बनानी होगी, ये जो यहीं पर दी हुई है. तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है. कंप्लीट और फेयर कॉपी प्रॉपरली and paste picture or draw picture where needed.